ये ट्रिगर दिया हुआ है, 2 trains. A typical math question goes this way. Something is written. At some point, it becomes a trigger. From that trigger, you do your reaction. A little later in the question, a second trigger comes. You do a second reaction. A little later in the problem, a third trigger comes. You do a third reaction. उसके बाद reaction 3 और reaction 2 मिलके तुमको reaction 4 देते हैं, और reaction 4 और reaction 1 मिलके तुमको reaction 5 देते हैं, और reaction 5 पे तुम्हारा आंसर आ जाता है. So why X is able to do it and Z is not able to do a question is because why Z is not able to do a question, and what are the conditions in which a person can't solve a maths question. One of these are the explicitly written triggers. So one of the triggers and reactions is failing. ये जो बोला है इससे क्या करना है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, या T1 to R1 या T2 to R2 या T3 to R3, या तो ये फेल कर रहा है, और ये तीनों में फेल अगर नहीं कर रहा है कुछ, तो the other reason is you are not able to merge R2 and R3 and create an R4. So the explicit instructions या तो तुम नहीं समझ रहे हो, या implied instructions जो explicit instructions की use करने के बाद situation बनता है तब नहीं समझ रहे हो. So the only reason why a person like Z can't solve a maths question is because either trigger 1, trigger 2 or trigger 3 is failing, or the merging of reaction 2 and reaction 3 into a new trigger which gives you a fourth reaction, and the merging of reaction 1 and reaction 4 into a new trigger which gives you a fifth reaction. This too is failing for you. और कोई रीजन नहीं हो सकता है, या तो कोई एक्सप्लिसिट ट्रिगर फेल कर रहा है या कोई इम्प्लिसिट ट्रिगर फेल कर रहा है. तीसरा कारण अगर कोई है मैथ्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने का, वो ये हो कि मैथ्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही गलत है. थर्ड और कोई रीजन नहीं है. तो इस क्वेश्चन में, दिस एक्चुअल कैट क्वेश्चन, एज आई सेड, 2 trains are crossing each other and the ratio of speed is 5:3. That's a trigger point. 2 trains are crossing each other in opposite direction. This is a story. But when they tell me ratio of speeds is 5:3, it becomes a trigger point. There's a reaction to it. And that reaction is pretty much a schoolboy reaction. In this, let their speed be 5x and 3x. So the sum of their speeds is 8x, and because they are crossing each other, they are crossing each other at a net speed of 8x. Now speed की बात हो रही है, तो implied variables क्या होंगे, implicit variables क्या होंगे सिचुएशन में? Time and distance. ठीक है, तो अब इस 8x से तो और कुछ कर नहीं सकते हम लोग. I'm trying to show you how this is 15 seconds, right? Without writing anything, you'll get the answer. इस 8x से तो और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो we'll go back to the question to take more instructions. That's what X would do. The engine away crosses the end of train B in 46 seconds. We have to use, this is again a trigger. ये भी एकदम explicit trigger है. We have to understand what this is telling me. So what this is telling me, engine away is a point. और टिपिकली जो स्ट्रक्चर होता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, if this is length of train A and this is length of train B, this is the point where they start crossing. और क्रॉसिंग कंप्लीट कब होती है? जब इसका एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसका एंड पॉइंट इधर आ गया, तो ये ट्रेन यहाँ पे आ गई और ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई. दिस इज वेयर द क्रॉसिंग इज कंप्लीट. और ऐसे सिचुएशन में जो थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है वो ये है कि द क्रॉसिंग गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू ट्रेन्स टुगेदर इज द लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ B. द कॉन्सेप्ट इज दिस कि तुम अगर स्टेशन पे खड़े हो तो ट्रेन अगर तुमको क्रॉस कर रही है, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन तुमको अगर क्रॉस करती है, तो ट्रेन का क्रॉसिंग स्टार्ट कब होता है? जब उसका इंजन तुम्हारे लाइन में आ जाता है. और ट्रेन का क्रॉसिंग एंड कब होता है? जब उसका एंड पॉइंट तुम्हारे लाइन में आ जाता है. तो ट्रेन को कितना ट्रैवल करना होता है डिस्टेंस व्हेन इट क्रॉसेस यू? इट्स ओन लेंथ. इट्स ओन लेंथ. ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल मर्ज टुगेदर टू गेट दिस आंसर इन 15 सेकंड. आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ. दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है,
द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम हियर, एक प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरी ट्रेन है और ट्रेन वहां से स्टार्ट कर रही है, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा व्हेन इट इज सेड दैट इट्स क्रॉस द प्लेटफॉर्म और व्हेन इट इज सेड दैट इट्स क्रॉस द सेकंड ट्रेन? द आंसर इज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पे बोल, जब इस लाइन में आ गया ट्रेन तो क्रॉसिंग स्टार्ट हो गया, और क्रॉसिंग कंप्लीट कब हुआ? जब ट्रेन का एंड यहाँ पहुंच गया. तो ट्रेन के इस इंजन को देखो तो कितना ट्रेवल किया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, सेकेंड ट्रेन प्लस इट्स ओन लेंथ. नाउ एक चीज और, ट्रेन क्रॉसिंग मैन, ट्रेन क्रॉसिंग कार, ट्रेन क्रॉसिंग पोल, इसमें इसका लेंथ नहीं लिया जाता है बिकॉज देयर इज नो लेंथ ऑफ द मैन और द पोल और द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेन लेंथ. ठीक है. बट ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ट्रेन क्रॉसिंग ब्रिज, इसमें क्रॉसिंग के लिए ट्रेन का लेंथ और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ दोनों को ऐड किया जाता है. ठीक है. नाउ जब तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व करोगे तो हर टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर बुक में एक क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा. दो ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, तो ट्रेन या इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है. ट्रेन वन क्रॉसेस द मैन इन दिस ट्रेन. इस सिचुएशन में ट्रेन टू का लेंथ का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दिस इज लाइक ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन. यू हैव टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम लाइक दिस. सो यहाँ पे अगर स्पीड ऐड करोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन वन, स्पीड ऑफ ट्रेन टू, अगर इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x प्लस वाई स्पीड हो जाएगा. और स्पीड के साथ दो वेरिएबल अपने आप आते हैं, टाइम और डिस्टेंस. इनटू टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन हियर, द डिस्टेंस विल जस्ट बी द लेंथ ऑफ ट्रेन वन, दैट्स इट. ठीक है. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इनसाइड दिस क्वेश्चन. So when you read this, engine of a, इतना तो क्लियर है सबको, किसी को, nobody is losing track of what I'm saying. I'm attempting a difficult explanation here, right? But I have the confidence that I'll be able to explain it properly to you. So I'm just trying to check, double check with you that you're okay. You're okay with me on whatever I've talked here. ठीक है. So engine of A crosses the end of train B in 46 seconds. So when I read this, the end of train B is the point. It's like a man sitting at the end of train B. And the engine of A crosses the end of train B. So engine of A crosses the end of train B में, इस situation में variables कौन कौन से हैं? Speed of the two trains, opposite direction है तो 8x है. Speed into time, 8x into time equals distance. Time is a stated variable. So 8x into 46. Distance क्या है यहाँ पे? ट्रेन B का लेंथ कि ट्रेन A का लेंथ? लेंथ ऑफ ट्रेन B. ये निकल गया. ट्रिगर रिएक्शन, राइट? प्रॉब्लम के बाहर नहीं गए हम लोग इसको सॉल्व करने में. अगर वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है तो यू विल गेट दिस रिएक्शन फ्रॉम हियर. नाउ दिस ट्रिगर, it takes a further 69 seconds for A to cross train B. Now train A to cross train B में distance कितना है? Length of A plus length of B, right? इसको LB लिख देते हैं इसको. So what this is telling me कि अगर distance LA plus LB है, ये 8x into 46 प्लस 69 लग रहा है. तो सिंपल हिसाब है, 8x के स्पीड पे ट्रेन B को क्रॉस करना है 46 सेकंड लग रहा है. ट्रेन A प्लस ट्रेन B को क्रॉस करना है तो 69 सेकंड और लग रहा है. तो ट्रेन A का लेंथ 69 है तो ट्रेन B का लेंथ 46 है. 3:2 is the answer. There is no step to be done in the question. ये एक्स्ट्रा 69 सेकंड्स क्यों लग रहा है? आई एम कमिंग टू यू. एक्स्ट्रा 69 सेकंड्स क्यों लग रहा है? 8x into 46 तो दोनों जगह है. इस तरह से देखो, 8x into 46 is TB,
लेंथ ऑफ बी। यहाँ पे भी 8x into 46, ये जो तुम्हारा इक्वेशन बना 8x into 46 is equal to length of b. 8x into 46 plus 69 is equal to length of b plus length of a. If I open this, I get 8x into 46 plus 8x into 69 is equal to length of b plus length of a. But this is what? So this is length of b. ये cancel हो जाएगा. Length of b 8x into 46 है, तो length of a 8x into 69 है. Ratio क्या है? और x और y में डिफरेंस ये है. x को यही दिख जाएगा, y को ये स्टेप्स करने के बाद दिखेगा. That's why y takes 2 minutes to get through the question. x can see it from the equation directly. ये LB cancel हो रहा है यहाँ पे, और इसको 46 सेकंड लग रहा है. This 46 is corresponding to length of b and this for 69 is corresponding to length of a. So ratio is 3:2. So x will not even write these equations. x और y में फर्क ये है. z में तो फर्क है कि उसको ये दिखेगा ही नहीं क्या करना है. x और y में फर्क है कि x से भी सॉल्व कर लेता है, y भी कर लेता है. y ये लिखेगा, इसके बाद इसको रिजॉल्व करेगा, उसके बाद इक्वेशन के थ्रू आंसर निकालेगा. x इतना देखेगा यहाँ पे कि this 46 seconds corresponds to length b length and this 69 seconds extra corresponds to length a strength, because that's the extra distance you're covering. That's why the ratio of lengths of a to b is 3:2. Thank you.